Hello everyone, myself Manali and I welcome you all to the YouTube channel of Infinity Engineering Academy. Today we are going to discuss the MCQ series related to the topic of hydraulic machines. These MCQs will be very important for your preparation of competitive examinations. Let us look at our first MCQ. The purpose of a surge tank in a pipeline is to minimize the friction loss in pipe, or for the smooth flow of water, or for the present occurrence of hydraulic jump, and last is to relieve the pressure due to water hammer effect. So surge tank is present in a hydropower plant. In every hydropower plant you will see this surge tank which will be present. Its location will be in between this horizontal to slightly inclined pipe and almost steep penstock. In between these two you will always find a surge tank. Surge tank is nothing but a chamber or a storage wherein there will be temporary storage of water. What problems may occur if surge tank is not present, or why surge tank is provided? What happens is that whenever you go for sudden opening or closing of valve, whenever you go for sudden opening or closing of valve, अगर मैंने वाल्व को सडनली क्लोज कर दिया तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी तो घट जाएगी, कम हो जाएगी, एक्सट्रीम अमाउंट्स ऑफ प्रेशर विल डेवलप एंड दैट मे कॉज दी कोलिजन ऑल्सो, पूरा का पूरा कोलैप्स हो सकता है. ठीक है, सो इन दैट केस ऑल्सो क्या हो जाएगा, सर्च टैंक प्रोवाइड होगा, टेम्पररी स्टोरेज हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो भी वाटर हैमर का इफेक्ट आता है आपके वाल्व के ऑपरेशन की वजह से वो रिलीव कर देगा. ठीक है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर डेवलप हुआ वाटर हैमरिंग की वजह से वो सर्ज टैंक रिलीव कर देगा. ठीक है, उसमें स्टोरेज होगा थोड़े टाइम के लिए उसके वजह से. वैसे ही मैंने जब वाल्व सडनली ओपन कर दिया तो क्या हो जाएगा, अमाउंट्स ऑफ वाटर बहुत जल्दी फ्लो होगा. अगर कहीं पे हम स्टोर नहीं करें तो नेगेटिव प्रेशर की वजह से आपका पूरा पेन स्टॉक भी कोलैप्स हो सकता है. सो आपका नेगेटिव प्रेशर एंड पॉजिटिव प्रेशर, जो भी प्रेशर का इफेक्ट आता है उसको हमें अगर करटेल करना है तो वी नीड सर्ज टैंक. सर्ज टैंक क्या करेगा, टेम्पररी अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वाटर स्टोर करेगा, तो ये जो भी इम्बैलेंस हो रहा है आपका उसको वो बैलेंस आउट करेगा. ठीक है, सो इट इज़ मेनली टू रिलीव द प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर इफेक्ट. फाइंड द डायमीटर ऑफ जेट डी, सॉरी दिस इज द डायमीटर ऑफ पिच व्हील. This is the diameter of the wheel, basically the pitch diameter of the wheel, you can say pitch diameter of the wheel. If the jet ratio is m and diameter of the jet is d, so jet ratio is denoted by small m and it is the ratio of the pitch diameter of wheel, which is denoted by small d, to the jet diameter, that is denoted by small d. Jet ratio is denoted by small m, capital D denotes the pitch diameter of the wheel and small d denotes the jet diameter. So in case of a Pelton wheel, this is your innermost shaft, this is your runner, and here will be your buckets. Here you will have your buckets जिसके ऊपर आपका वाटर, द जेट ऑफ वाटर विल बी स्प्रिंकल्ड. ठीक है, फ्रॉम दिस साइड योर जेट वाटर विल बी कमिंग. ठीक है, यहाँ से आपका जो फ्लो आएगा जेट का. सो ये जो डायमीटर है दैट इज़ नथिंग बट द स्मॉल डी. ये जो आपका दिस इज़ नथिंग बट द सर्कल दैट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द बकेट्स, और इसका जो टोटल डायमीटर है दैट इज़ माई कैपिटल डी. ठीक है, दिस इज़ द स्मॉल डी, और इसका मैं रेशियो ले लेती हूँ तो इट इज़ कॉल्ड एज जेट रेशियो. इट इज़ नथिंग बट दिस कैपिटल डी टू स्मॉल डी. ओके, ये सारी बकेट्स है और इनका जो ये सेंटर लाइन है उससे ये पूरा फॉर्म किया जाता है. ठीक है, इन बकेट्स की असेंबली से. सो व्हाट इज़ गिवन टू मी एंड व्हाट इज़ आस्क्ड, आई एम आस्क्ड द पिच डायमीटर ऑफ व्हील. I am asked the pitch diameter. This capital D denotes the diameter of wheel, not of jet. Jet ratio is given, diameter of jet is given. So मुझे क्या करना है, capital D is equal to m into D. m की वैल्यू कितनी है, it is a ratio so it is unitless, and small d is 125 mm. ठीक है, आपको ये ऑप्शंस दिए हैं मीटर में, सो इसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ
मीटर में, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज 1.25 मीटर, ठीक है। इफ आई कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ मीटर, इट विल बी कैपिटल D वैल्यू इज 1.25 meters फॉर योर जेट रेशियो गिवन एज 10, for your jet ratio given as 10 and small d given as 125 mm. Okay, so in this way you have to find. अभी कई बार आपको d and d, that is capital D and small d are given, आप उससे m find कर सकते हैं. capital D and m दिया है तो आप small d find कर सकते हैं. इस केस में capital D पूछा था and small m and small d were given to you. Okay, so this basically we are talking of Pelton wheel, ठीक है। आपको पता है एक तो पेल्टन व्हील है, एक कैप्लान टरबाइन है, फ्रांसिस टरबाइन है. सो ये पर्टिकुलर सम जो है इट इज़ रिलेटेड टू पेल्टन व्हील. सो योर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अ टरबाइन डेवलप्स ए टॉर्क ऑफ 100 kilonewton meter at 240 rpm. द पावर डेवलप्ड इज हाउ मच, ठीक है। सो एक टरबाइन के लिए जिसमें टॉर्क दिया है आपको, उसका n की वैल्यू दे रखी है, तो पावर कैसे फाइंड करेंगे. सो पावर इज नथिंग बट 2 pi nt by 60, 2 pi nt by 60, ठीक है. अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो n की वैल्यू 240, इसको मैं सीधा अगर 100 एज इट इज़ रखूँ तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो किलोवाट में मिलेगा, क्योंकि मैंने इसका वैल्यू जो है वो किलो न्यूटन मीटर में रखा है. मैं अगर उसको कन्वर्ट कर देती हूँ इंटू 1000 करके तो मुझे वॉट में आंसर मिलेगा. बट नाउ आई एम कीपिंग इट एज इट इज़ इन टर्म्स ऑफ 100 किलो न्यूटन मीटर. सो मुझे इससे जो वैल्यू मिलेगा वो आंसर आएगा किलो वॉट में, ठीक है. एंड इट इज़ समवेयर नियर 2513 किलो वॉट. सो नियरेस्ट ऑप्शन इज़ सी, ठीक है. अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहो कन्वर्ट भी कर सकते हैं एंड देन यू कैन लुक एट द ऑप्शंस. इट विल बी क्लोजेस्ट ऑप्शन इज दिस सी, 2515 किलोवाट. इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ओके. द अवेलेबल हेड ऑफ अ फ्रांसिस टर्बाइन. सो वी आर टॉकिंग ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन. अवेलेबल हेड इज 100 मीटर. अवेलेबल हेड इज 100 मीटर. वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट द रनर इनलेट. फ्रांसिस टर्बाइन के लिए जो फ्लो वेलोसिटी है इनलेट पे, इसलिए मैंने उसको VF1 से डिनोट किया. इट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर फ्लो रेशियो? फ्लो रेशियो इज गिवन बाय VF1 by root of 2GH. So we will put all the values. VF1 is 15, root of twice into, this can be taken as 9.81, or for simplicity it is taken as 10 into 100. So this is 15 by root of 20 into 10. So this you can simplify as 1.5 by root of 20. 1.5 by root of 20. So approximately this value will come to 0.33. Approximately the value will come to 0.33. ठीक है. अगर आपको इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो वैल्यू दे रखा होगा, ठीक है, तो आप उससे डायरेक्टली पुट डाउन करके आंसर फाइंड कर सकते हैं. सम मल्टीप्लिकेशंस एंड ऑल यू आर needed to perform, but some values may be given for simplicity also. Okay, if calculators are not provided. Dash is the ratio of volume of water actually striking the runner and volume of water supplied to the turbine. So एक है आपका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई होता है टरबाइन को, दूसरा है उस वॉल्यूम में से रनर पे एक्चुअली कितना स्ट्राइक होता है, और तीसरा है जो रनर पे स्ट्राइक हुआ उसके बाद शाफ्ट ऑफ द टरबाइन पे कितना पहुंचेगा. ओके, सो फर्स्ट इज द इनलेट ऑफ द टरबाइन. इनलेट ऑफ द टरबाइन पे कितना वाटर आ रहा है, उसके बाद रनर जो ब्लेड्स है उस पर एक्चुअली कितना स्ट्राइक हो रहा है, एंड जो शाफ्ट ऑफ द टरबाइन है उस पर कितना जा रहा है. ओके, सो वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग द एफिशिएंसीज ऑफ टरबाइन यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग. दिस इज अ शॉर्टकट विच यू नीड टू रिमेंबर. इनलेट ऑफ टरबाइन पे क्या सिचुएशन है, रनर पे क्या सिचुएशन है, एंड शाफ्ट ऑफ टरबाइन पे. ओके, सो हाउ वी विल सी नाउ वन बाय वन. All these are the different efficiencies of turbine.
mechanical efficiency, volumetric efficiency, hydraulic efficiency and overall efficiency. But when we calculate the efficiency with respect to volume of water actually striking the runner to volume of water at the inlet of the turbine which is supplied to the inlet, वॉल्यूम के बेसिस पे रेशियो लेते हैं तो इट इज़ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. वॉल्यूम के बेसिस पे रेशियो है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. ये सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ पावर के टर्म्स में, यानी कि पावर ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर टू पावर ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टर्बाइन, पावर के टर्म्स में बात करूँ तो इट इज़ हाइड्रोलिक. ठीक है, वाटर का जो वॉल्यूम है उसके टर्म्स में बात किया तो वॉल्यूमेट्रिक, सेम चीज़ पावर के टर्म्स में अगर बात किया तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी. उसके बाद नेक्स्ट इज़ मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी. मैकेनिकल एफिशिएंसी में भी वही चीज़ है, पावर की ही बात हो रही है, बट इट इज़ द पावर विच इज़ एक्चुअली अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन टू द पावर विच इज़ डिलीवर्ड टू द रनर. ठीक है, शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन पे कितना अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू रनर पे कितना डिलीवर हो रहा है, उसका जो रेशियो लेंगे तो इट इज़ मैकेनिकल एफिशिएंसी. इट इज़ गोइंग टू बी मैकेनिकल एफिशिएंसी. ओके, एंड ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा ओवरऑल एफिशिएंसी. ठीक है, इस MCQ का सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके पास है. सिंस इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम वी विल कॉल द आंसर एज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. बट इफ वी आर आस्क्ड एनी ऑफ द अदर MCQs, एनी ऑफ द अदर ऑप्शंस, देन वी शुड नो द मीनिंग्स ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा ये सेम चीज़ उठा के पावर के लिए बात करेंगे तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी में भी पावर की बात हो रही है लेकिन शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन एंड रनर उसके बीच की, तो इट इज़ मैकेनिकल एफिशिएंसी. ओवरऑल में हम मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ओवरऑल एफिशिएंसी मिल जाएगा. ठीक है, तो जैसे वॉल्यूमेट्रिक पूछा है वैसे इन दोनों में से या इन तीनों में से भी कोई ऑप्शन आपको इस स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है. ओके, for a centrifugal pump suction lift head, so this question is of pump. ठीक है, आपको पता है मेजर हाइड्रोलिक मशीन्स क्या है, पंप एंड टर्बाइन. सो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए मेजॉरिटी वे रिलेटेड टू टर्बाइन. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पंप. पंप में भी कौन सा पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात हो रही है, तो उसमें सक्शन लिफ्ट हेड क्या है. इज इट द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड लेवल इन द डिस्चार्ज टैंक एंड द पंप सेंटर लाइन. ठीक है, जो पंप का सेंटर लाइन है उससे टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड लेवल इन डिस्चार्ज टैंक, जहाँ पे डिस्चार्ज कर रहे हैं हम पंप को, एक साइड से सक्शन हो रहा है एक साइड से डिस्चार्ज हो रहा है, तो पंप का सेंटर लाइन और वो डिस्चार्ज साइड उन दोनों का डिस्टेंस दैट इज़ योर सक्शन लिफ्ट हेड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1. ऑप्शन 2 के हिसाब से जो पंप का सेंटर लाइन है वो एंड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड लेवल इन द सम्प, जहाँ से सक्शन हो रहा है वहाँ का जो लिक्विड लेवल है उसका फ्री सरफेस एंड पंप का सेंटर लाइन उसके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस. थर्ड ऑप्शन इज हेड फॉर ओवरकमिंग द फ्रिक्शन लॉस इन सक्शन पाइप, एंट्री लॉस एट एंट्रेंस टू द फ्रिक्शन पाइप and running the fluid in the suction pipe. And last option is none of the above. So what happens, there will be one suction side. Okay, this is the topmost surface or the free surface of that suction line. ठीक है, यहाँ पे आपका जो पंप आ जाएगा. ठीक है, something like this, and it will be going to the discharge end. This is going to the discharge end, this is to the suction end. ठीक है, तो ये जो है ये मेरा सेंटर लाइन ऑफ द पंप है. दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ द पंप. ठीक है, तो ये सेंटर लाइन ऑफ द पंप से लेकर के ये जो फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड एट द सक्शन साइड है उसको मैं बोल दूंगी सक्शन हेड. सक्शन हेड, किसका हेड, सक्शन लिफ्ट हेड का पूछा है. उसका मतलब क्या है, पंप की सेंटर लाइन से जो आपका सक्शन साइड है वहाँ का जो फ्री सरफेस है वहाँ तक का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, उसको हम सक्शन हेड कहेंगे. सेम चीज़ जब डिस्चार्ज हेड की बात हो तब भी वो पंप की सेंटर लाइन से होगा लेकिन ऑन द डिस्चार्ज साइड, यानी कि जो पहला ऑप्शन था टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड इन डिस्चार्ज टैंक. यहाँ पे हम सक्शन की बात करें, सक्शन लिफ्ट हेड की बात करें इसलिए हम सक्शन साइड की बात करेंगे. डिस्चार्ज लिफ्ट हेड की बात करें तो डिस्चार्ज की बात करेंगे. ठीक है,
So in this case option will be B, vertical distance between the free surface of liquid level in the sump. This is your sump. So free surface इसका जो है और जो आपका पंप का सेंटर लाइन है उसके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है that is nothing but your suction lift head. Okay. The specific speed of a centrifugal pump delivering 750 liters of water per second against a head, आपको 750 liters of water per second दिया है, यानी कि Q is given to you. Okay. Next is head is given, that is 15 meters, and value of N is given, that is 725 RPM, and Q is given in liters, which you can convert to meter cube per second. With all this data, we need to find the specific speed of a centrifugal pump. So to find the specific speed in case of a turbine and specific speed in case of a pump. टरबाइन के केस में फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हम पंप की बात कर रहे हैं, बट वी विल डिस्कस बोथ. ठीक है, दिस इज n रूट p बाय h रेज टू 5/4, n रूट p बाय h रेज टू 5/4. okay, n root p by h raised to 5/4. If I talk about the same thing in case of a pump, ठीक है, टरबाइन के केस में इक्वेशन फॉर स्पेसिफिक स्पीड इज n रूट p by h raised to 5/4. स्पेसिफिक स्पीड इज दैट स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट पावर एट यूनिट हेड. लेकिन सेम टू सेम चीज़ जब पंप पे बात करते हैं तो फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू पावर नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्चार्ज आ जाएगा, एंड नीचे भी हेड तो रहेगा लेकिन उसका कोएफिशिएंट चेंज होगा. ओके, इट विल बी n रूट q by h raised to 3/4. So all the values are given to you. You can just put them directly. n is given to you 725 rpm दिया है. Root of q is 0.75 by h raised to 3/4. h is 15 raised to 0.75. I will write it again. 725 root of 0.75. h कितना है 15 raised to 3/4. Okay. So you solve this, your answer will be approximately closer to 82.4. 82.4 के approximate answer आएगा. ठीक है. So 82.4 RPM will be the answer for this particular question. Sometimes you are only asked the formula. कई बार आपको ऐसा TDS कैलकुलेटर अगर नहीं है तो TDS कैलकुलेशन नहीं पूछते. कई बार क्या होता है उसमें आपको सीधा फॉर्मूलाज दे देंगे और आपको पूछेंगे स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन का क्या फॉर्मूला है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप का क्या फॉर्मूला है, या फिर कई बार आपको ये इसकी वैल्यूज़ भी दे गई होती है जिसको आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते. वैसी चीज़ों की वैल्यू दे रखी है, आप डायरेक्टली वो वैल्यू मल्टीप्लाई करो और आंसर फाइंड करो. ठीक है. सो कैलकुलेटिव सम्स आर आस्क्ड, लेकिन कोई TDS कैलकुलेशन है तो उसका कुछ ना कुछ आपको उसमें दिया रहेगा. ओके, सो योर आंसर विल बी 82.4 RPM. सो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन, दोनों के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टू कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. सो नाउ विल लुक एट द 8th MCQ. द रेशियो ऑफ द डायनामिक हेड एंड द एक्चुअल हेड डेवलप्ड इन अ पंप is known as which of the following efficiencies? Is it the hydraulic efficiency? Is it manometric efficiency, overall efficiency, or none of the above? So whenever you calculate the efficiencies with respect to the head, that is your dynamic head and your actual head, in case of a pump, it will always be known in terms of manometric efficiency. It is known in terms of manometric efficiency. ठीक है. हम efficiencies calculate कर सकते हैं power के हिसाब से. ठीक है. We can also calculate the efficiency with respect to the amount of water provided. So all these different efficiencies are possible. लेकिन जब भी हम head के हिसाब से efficiency calculate करते हैं, it is called as manometric efficiency. ठीक है. Overall efficiency में क्या रहेगा, आप power output और power input को divide कर दो. ठीक है. So power के respect में वो आ जाएगा.
ठीक है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी विल ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन दैट पर्टिकुलर मैनर। लेकिन हेड के हिसाब से जब हम करते हैं तो उसको मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी कहेंगे। एक्चुअल हेड मतलब जो इम्पेलर को हेड मिल रहा है ड्यू टू दी वाटर फ्लो, एंड डायनेमिक हेड जो है वो स्टैटिक हेड जो आपका फिक्स है वो, और आपका फ्रिक्शन लॉसेस उसको ऐड करके जो हेड मिलेगा वो डायनामिक हेड कहेंगे। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैलकुलेट दी मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। These two efficiencies are very important in case of a pump. ठीक है, the draft tube in reaction turbines, reaction turbines जो भी है उसमें आपका जो exit of the turbine है वहाँ से नीचे की तरफ एक converging mode में एक ट्यूब पास किया जाता है। There is a converging tube from the exit of the turbine. ठीक है, that is nothing but it is your draft tube. It is called as draft tube. हमने वाटर यूज़ किया, वाटर की एनर्जी यूज़ की, अभी उस वाटर को हमें कन्वे करना है टेल रेस की तरफ, आगे की तरफ। उसको ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते बिकॉज इट इज़ इन लार्ज वॉल्यूम्स। ठीक है, सो ऐसे ही अगर उसको हम कोई पर्टिकुलर रास्ता ही नहीं देंगे तो क्या होगा, उसमें काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इट कैन दैट एनर्जी में कॉज सम अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस। तो उस एनर्जी को हमें अभी कम करना है, उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो इसीलिए हम ड्राफ्ट ट्यूब प्रोवाइड करेंगे ताकि एक प्रॉपर वे मिल जाए अपने पानी को टेल रेस की तरफ लेने के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, कन्वर्जिंग होने की वजह से एरिया बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। सो जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो उसमें कम होती जाएगी और इट विल बी कन्वर्टेड टू प्रेशर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कहीं जाने तो वाली नहीं है, लेकिन आपने जिस तरीके का उसको ज़रिया दिया है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होगी, प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, so draft tube is used for carrying the water to tail race level. As I told you that it is in large volumes of water, so उसको एक proper conduit देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो water pass हो सके। So first is to carry water to tail race, second to convert kinetic energy to pressure head. As I told you, converging है, area बढ़ रहा है, kinetic energy कम होगी, velocity कम होगा इसी की वजह से, और वो सब convert किस में होगा, pressure head में। And to ensure safety to the turbine, that is the most important thing, that is the most important thing कि हमको अभी हमने पानी का यूज़ कर लिया लेकिन पानी को कन्वे नहीं करेंगे तो it will cause some problem for the turbine. Okay, so to ensure safety to the turbine, यही भी एक purpose है draft tube का। So answer will be D, all of the above. Okay, pump is a device which converts mechanical energy to hydraulic energy to mechanical energy, electrical energy to mechanical, and mechanical energy to electrical energy. ठीक है, सो पंप बेसिकली क्या कर रहा है, पंप वाटर को लिफ्ट कर रहा है सक्शन से लेके डिस्चार्ज तक। ठीक है, एक पर्टिकुलर हेड ऑफ वाटर है जिसमें कि वाटर, आपका जो पंप है वो वाटर को ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, इट मे बी फ्रॉम अंडरग्राउंड टैंक टू ओवरहेड टैंक। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर हेड क्रॉस करके पानी को ऊपर पहुंचा रहा है, दैट इज़ वन पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ पंप। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, वाटर को ट्रांसमिट कर रहा है, मीन्स इट इज़ कन्वर्टिंग टू हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक है, वाटर रिलेटेड एनर्जी यानी कि जो हाइड्रोलिक एनर्जी है उसमें वो ट्रांसमिट कर रहा है। और पंप है क्या एक्चुअली, इट इज़ यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर, बट बेसिकली पंप में होता क्या है, फंक्शनिंग क्या है, सो जो भी उसका मैकेनिज्म है इट इज़ वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। रोटर है आपके पास, इलेक्ट्रिक मोटर है, सो बेसिकली मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, सो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग टू हाइड्रोलिक एनर्जी। व्हाई हाइड्रोलिक एनर्जी, बिकॉज योर वाटर इज गेटिंग ट्रांसमिटेड, दैट्स व्हाई द हाइड्रोलिक एनर्जी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, सो ऑप्शन विल बी ए, मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी। So with this we come to an end of this particular MCQ series. Thank you very much. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा। जर तुम्ही आमचे चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच सबस्क्राईब करा आणि मिळवा परीक्षांचे अपडेट्स, मोफत स्टडी मटेरियल आणि व्हिडिओ लेक्चर्स। धन्यवाद।